If you remember, in one of the session we saw how to use the text box, how to give the checkbox, then how to upload the file, option box and button. This is the code that we have already gone through. It was the part that we have already covered in one of the lecture. All these components can be given using your input tag that I already explained you. Let's see again. You might forget that. That's why we will repeat this part in short. This is HTML tag, head tag, title tag, head, body. Then we have given the title at the center. That's why it is written like center h1 and title. Then we have to give username. That's why we have used one label like this username. Then input type, it should be the normal text. That's why it is written like the type of input tag will be written as a input type text. The name will be treated as username. That's why it is written like unm. You can write any name here, it should be understandable. Then placeholder is responsible for this kind of text. If you can see in the gray color inside the text box, it is because of your what, it is because of this placeholder attribute. Then this is break, again password. Now here you can observe the input type text for username. Here I am using input type password for my password field, due to which what will happen, whatever username you are going to write, it will be visible like this, but whatever password you are going to write, the password will be in the form of symbols. That's why the type will be, the input type is password, name and again placeholder. Everything will be same, only there will be the change in the type. If you change the type, the nature of the input type, input tag will get changed. So this username will be your normal text box, this will be your password text box. Now the next one is your checkbox. If you want to use the checkbox in your HTML form, you can write like this: input type checkbox name, and this will be the part displayed to the user. Please remember, whatever we are going to write outside your angular bracket, everything will be visible to the user. एंगुलर ब्रैकेट के बाहर आप जो कुछ भी लिखोगे वो सारा पार्ट आपको यूजर को दिखेगा. यहाँ पे भी आप देखो, ये एंगुलर ब्रैकेट है, ये एंगुलर ब्रैकेट है, एंगुलर ब्रैकेट के बाहर जो कुछ भी लिखा है वो यूजर को दिखेगा. So this will be my one checkbox, this will be my another checkbox, and this will be my third checkbox. So you can see all the checkbox are here like this, that we have already gone through. We already saw this how to give. Again, let's see once again: input type checkbox name and the value that should be displayed on the HTML page. This is written like this. Now next is, यहाँ पे देखिए, आपको अगर कुछ फाइल अपलोड करनी है तो यहाँ पे ये अपलोड का बटन आना चाहिए. सो यहाँ पे आप अपलोड का बटन जो भी आएगा, सपोज सिलेक्ट दिस फाइल, you can see the file name and its extension here like this, intercom directory. You can see the title here like this. So how it is appearing, it is because of this input type and file. इसके और भी attributes है, कैसे लेने हैं क्या लेने हैं, that we will see later at the time of your mini project. But it should be like this: input type, and you are going to specify the type as a file, so it will be treated for your uploading purpose. So यहाँ पे हमने input का एक type देखा था text, एक है आपका password, एक है आपका checkbox, another type is your file. Now we will see how to give the radio button. Now the radio button, the property of the radio button will be, you can select one radio button at a time like this. If you can see on this screen, it should be like this, irrespective of your checkbox. You can select your all checkbox at one time, but in case of your radio button, you can select only one radio button at one time. How? This is because, let's see, input type radio name value, and
This will be the value displayed on the web page. Again, input type radio name value, and this will be the value displayed on the screen. Now the property states that you can select only one radio button at one time, irrespective of how many radio buttons are there, or in contrast with your checkbox. Checkbox में आप multiple checkbox select कर सकते थे, यहाँ पे वैसा नहीं है. Why is it so? The only reason for this is you must give the same name for all the radio buttons. अगर आप यहाँ पे देखोगे चेकबॉक्स के केस में, तो चेकबॉक्स का नेम यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, और यहाँ पे भी क्या है, डिफरेंट दिखेगा आपको. बट इन केस ऑफ योर रेडियो बटन यू कैन सी द नेम attribute will be same. This is how you can give the radio button, and only because of this name attribute, by giving the same name, you will set the property to the radio button like this. ये जो भी आपको राउंड दिख रहा है, राउंड, और उसके बीच में ब्लू कलर का डॉट दिखता है, दैट इज द स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ दिस टाइप रेडियो. यहाँ पे आपको चेक बॉक्स दिखेगा स्क्वायर में, और वहां पे अंदर आपको टिक मार्क दिखता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस चेक बॉक्स. इट डिपेंड्स ऑन इट्स नेम एट्रीब्यूट. So this is what we saw up to the previous session. Now in this session, what we are going to do is we have to do the validations on your these components. So what do you mean by validation? Validation means you have to check whether the components, whether the data entered by the user are valid or not. The example of validation is, for example, email validation. In case of email validation, there should be @ symbol, there should be something .com .org, कुछ तो भी वहां पे होना चाहिए. So in the first assignment, in the first part of your group B, we created one HTML form, and we are going to apply the validation. But which validation? Email validation, mobile validation, pin code and password. Some validation we have to apply. So the assignment number 4 states that we have to validate the URL, email ID using some of the functions like your empty, preg underscore match, filter where in your PHP. So assignment number 3 का जो भी part था वो हमने complete कर लिया. Now we will see assignment number 4, that we have to apply the validations on the form created in assignment number 3. तो यहाँ पे आपका validation URL का रहेगा, email का रहेगा, name का validation रहेगा, and this validation can be done with the help of your these built-in function like your empty, preg match or filter variation of your PHP. So let's see how to do this. यहाँ तक के अगर आपको clear होगा, then we will see the next part, how to give the validation. This is the code for your validation. In case of your this code, this program is written, if you can see on this screen, this program is written in PHP. अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख पाओगे यहाँ पे, you can see the file name email and its type is PHP. So to run the PHP program, you required one of the what? One of the server. In my case, I'm going to use this XAMPP server. If you can see on the screen, I'm going to use XAMPP server. In that XAMPP server, I'm going to execute this program. अगर आप ये program देखोगे, if you can see on the screen, this program is there. I will explain the program later. Before that, let me show you the output of the program, how the output should look like. Okay, this is localhost. I will show you how to use your server. XAMPP server कैसे यूज करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा. Don't worry. Let me show you the output first. आपकी अगर ये विंडो आ जाती है, it means that your XAMPP server is working perfectly. Now I need to execute my that email.php program. Just write like this. You will see the output here, PHP program for email name and URL validation. Now
The very first part is we are going to validate the email address, then we are going to validate the full name, and we are going to validate the URL. So let's see how to validate this. Just for example, consider this is my mail ID. यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने मेल आईडी एंटर किया है. Now I am going to click on validate. It will going to show you that whatever mail ID I have entered, that mail ID is valid. अगर मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ ऐसा और मैं अगर बोलता हूँ वैलिडेट, देन इट विल गोइंग टू शो यू दैट दिस मेल आईडी इज इनवैलिड फॉर्मेट, बिकॉज यहाँ पे एट द रेट सिंबल नहीं है, यहाँ पे .com .org कुछ भी नहीं है, तो उसने क्या किया, सिंपली उसे इनवैलिड बता दिया. इफ यू विल गेट दिस, यू कैन सी दिस अगेन, आई एम गोइंग टू शो यू. यू कैन सी दिस पराग अंडरस्कोर अचलिया 143@yahoo.co.in, ये मेरा मेल आईडी है. मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और वैलिडेट बोलता हूँ, इट विल गोइंग टू शो यू दैट इट इज अ वैलिड मेल आईडी. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस वे से एंड आई एम गोइंग टू वैलिडेट दिस, इट विल गोइंग टू शो यू दैट इट इज इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट. दिस इज इन केस ऑफ योर ईमेल फॉर्मेट. यहाँ पे मैंने यहाँ पे दिया है, आई एम गोइंग टू चेक पराग आचिलिया इज वैलिड नेम. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पराग 123 एंड आई एम गोइंग टू चेक ओनली लेटर एंड व्हाइट स्पेस अलाउड. आपको पता है नेम के स्पेलिंग में कभी नंबर नहीं होता है. क्या हो सकता है उसमें, ओनली लेटर एंड व्हाइट स्पेस इज अलाउड इन केस ऑफ योर नेम. मैंने यहाँ पे दिया था नेम के साथ में नंबर भी दिया था, तो उन्होंने मेरे को ऐसा मैसेज दिया दैट ओनली लेटर एंड व्हाइट स्पेस अलाउड. ये मैसेज भी मैंने टाइप किया है. यू कैन गिव वट एवर मैसेज यू वांट, यू कैन गिव द मैसेज ओवर हियर. यहाँ पे यूआरएल है. यूआरएल के केस में सपोज मैं लिखता हूँ पराग and I'm going to test the URL. The error message is like this: invalid URL. That means it is not my valid URL. Now I'm going to check this URL. मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट का URL मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे. It is going to show me that this is a valid URL. Or what I can do is www.parag-n-achilia, and again it was going to show me that it is valid because it is finding this www protocol. In this way you can check email validation, you can check name validation, and you can check URL validation. This is the program, this is the assignment number 4. Now let's see the code. What is there in the code? We will see the code. Code में क्या दिया रहेगा, that we are going to see here. कहाँ गया मेरा code? Yes, here it is. Don't worry, I am going to explain you how to use this XAMPP server. Before that, let's see the code. For that purpose, you must be aware about the basics of your PHP program. तो यहाँ पे मैंने normal HTML का कोड लिखा है. यहाँ पे मैं टाइटल दे रहा हूँ, this is my body part. यहाँ पे मैंने टाइटल दिया जो मेरा HTML पेज पे दिखेगा. This is my text, this is input type text. और यहाँ पे now you have to observe this. ऑब्जर्व दिस वेरी केयरफुली. नेम इज इक्वल टू ईमेल, और उसके लिए मैंने एक बटन लिखा था यहाँ पे वैलिडेट ईमेल नाम का. मैंने सेकंड टेक्स्ट लिखा वहां पे, उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेम मेरा ईमेल है, यहाँ पे नेम मेरा नेम है. यहाँ पे मैं और एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं और एक क्या कर रहा हूँ, मेरा टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ फॉर यूआरएल पर्पस. नाउ सी, आई एम राइटिंग नेम एज यूआरएल, नेम एज नेम, एंड नेम एज ईमेल. ये जो कुछ भी वैलिडेशन मैंने किया था वो पूरा वैलिडेशन मेरे ये 3 एट्रीब्यूट के ऊपर है, दिस नेम एंड दिस नेम. सो यू हैव टू यूज दिस नेम्स वेरी केयरफुली. और यहाँ पे मैंने एक बटन लिया था जिसका नाम था बटन यूआरएल, बटन नेम एंड बटन ईमेल. नाउ यहाँ से यहाँ तक जितना भी पार्ट था ये मेरा HTML का पार्ट था. HTML के पार्ट में मैंने लिखा था कुछ तो भी यहाँ पे. अभी यहाँ पे मैंने एक पार्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया, दैट इज माई दिस फॉर्म टैग. This form tag is responsible for whatever PHP program you are going to write. PHP program में अगर आप बटन देते हो तो बटन पे क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए वो आपके फॉर्म टैग में होता है. प्लीज रिमेंबर ऑलवेज दिस, दैट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, ये पार्ट आप कहाँ पे मेंशन करोगे, ये वाले डबल कोट में एक्शन पार्ट में आप मेंशन करोगे. अब मैंने क्या किया था, जो बटन था बटन पे क्लिक करने के बाद मेरा आउटपुट वहीं पे मुझे दिख रहा था. दैट मीन्स इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द सेम फाइल. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने एम्प्टी लिखा है.
अगर इस बटन के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल ये बटन मेरा कंसिडर करो, इस बटन पे क्लिक करने के बाद मेरे अगर कोई न्यू फाइल ओपन होती थी तो मुझे यहाँ पे इस एक्शन के डबल कोट में न्यू फाइल का नाम देना पड़ता था along with its extension. Please remember this. And here I am going to use the method as post. There are two methods, get and post. Always use post method to hide the credentials. अगर आप यहाँ पे गेट मेथड यूज करोगे तो क्या होगा, आपके यूआरएल में वहां पे पूरा दिखेगा आपने क्या यूजर नेम और पासवर्ड दिया था, अगर आप गेट लिखते हो तो। अगर आप पोस्ट मेथड लिखोगे तो आपके यूआरएल में कभी भी आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं दिखेगा। सो पोस्ट हैव वेरी गुड सिक्योरिटी देन योर गेट मेथड। तो यहाँ पे मेरा बटन था, बटन पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आ जाएगा वो मेरे पीएचपी के कोड में। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा ये फर्स्ट बटन है, मैं ईमेल वैलिडेशन कर रहा हूँ। ईमेल वैलिडेशन के लिए मेरे बटन का नाम क्या है, दिस इज माय बटन नेम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू चेक वेदर which button is clicked, whether this button is clicked or this button is clicked or this button is clicked, मैं वो चेक करने वाला हूँ। तो उसके लिए मेरे पास PHP का फंक्शन है is set. So the structure will be like this: if each set underscore sorry in bracket dollar underscore post and in bracket button email. Now see, this button underscore email will be matching with this button underscore email. So this line will going to check whether my email button is clicked or not. This line will going to check whether my name button is clicked or not. This line is going to check whether my URL button is clicked or not. मैं जो भी बटन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा उसके रिलेटेड उसका जो भी कोड है वो कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लीज रिमेम्बर दिस। इसलिए मेरे 3 बटन है, 3 बटन के लिए मैंने ये क्या किया है, यहाँ पे 3 कोड अलग से लिखे हैं। नाउ माय फर्स्ट कोड विल बी फॉर योर ईमेल एड्रेस, ईमेल वैलिडेशन। सो यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, यहाँ पे ये कैपिटल में ही लिखना है। ऑलवेज रिमेम्बर दिस, यू आर गोइंग टू राइट दिस इन कैपिटल ओनली। यहाँ पे पोस्ट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मेथड में पोस्ट लिखा है। अगर मैं यहाँ पे मेथड में गेट लिखूंगा तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, डॉलर अंडरस्कोर कैपिटल गेट लिखना रहेगा। प्लीज रिमेम्बर दिस। नाउ दिस पार्ट, this is very important part, that what is happening in this line। यहाँ पे ये जितना भी पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है, दिस विल बी माय HTML पार्ट, और ये जो भी है ये मेरा PHP है। अभी आपने क्या किए थे, आपने जो कुछ भी ईमेल आईडी टाइप किया था वो ईमेल आईडी आपने कहाँ पे टाइप किया था, HTML के कोड में यहाँ पे टाइप किया है ना। सो इट इज स्टोर इन माय HTML टेक्स्ट बॉक्स। मुझे क्या करना है, उसके ऊपर अगर वैलिडेशन चेक करना है, for that validation purpose I should tag that HTML value in my PHP program। क्योंकि मेरा यहाँ पे देखो, आप अगर देखोगे कहाँ पे है मेरा ये इनपुट टाइप टेक्स्ट, यस दिस इज माय टेक्स्ट बॉक्स। अभी यहाँ पे आप अगर उसका टाइप देखोगे तो टेक्स्ट है, बट अगर आप उसका नेम ऑब्जर्व करोगे, नेम विल बी ईमेल। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा हूँ, डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट में, यहाँ पे मैंने नेम में जो कुछ भी लिखा था वो मैं एज इट इज यहाँ पे लिख रहा हूँ। इससे क्या होगा, मैंने टेक्स्ट बॉक्स में जो कुछ भी ईमेल आईडी टाइप किया था, मेरा वो ईमेल आईडी यहाँ से मेरे इस PHP वेरिएबल में आ जाएगा। दैट मीन्स दिस ईमेल इज माय HTML वेरिएबल एंड दिस ईमेल आईडी इज माय PHP वेरिएबल। अगर मुझे उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन करना है HTML में, जो भी मैं टेक्स्ट बॉक्स में लिख रहा हूँ उसके ऊपर मुझे अगर कुछ ऑपरेशन करना है, फॉर दैट ऑपरेशन पर्पस you must take that HTML value in PHP program, and this is the line responsible for converting your HTML value into PHP value। Please remember this। अगर आप इस वजह से लिखोगे then it will become your HTML part। अगर आप डॉलर के साथ में वेरिएबल लिखोगे then it will become your PHP। सो ये लाइन क्या करेगी, चेक करेगी ईमेल का बटन क्लिक किया है या नहीं। अगर किया है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, यहां से यहां तक, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन इट विल बी इनसाइड योर इफ ब्लॉक। इफ ब्लॉक में वो क्या करेगा, मेरा HTML में जो कुछ भी ईमेल आईडी है वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा, PHP में आ जाएगा। PHP में आने के बाद मैं सबसे पहले चेक करूंगा, अगर मेरा टेक्स्ट बॉक्स एम्प्टी रहेगा देन आई एम गोइंग टू चेक वेदर इट इज एम्प्टी और नॉट। जस्ट चेक इट हियर।
यहाँ पे कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे एम्प्टी है और मैं वैलिडेट बोल रहा हूँ, तो वो बोल रहा है ईमेल इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज एम्प्टी राइट नाउ, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी द मैसेज लाइक दिस। अगर मेरा एम्प्टी है ये वाला वेरिएबल जो कि मेरे HTML से आया है, HTML से PHP में आया है, और PHP का फंक्शन एम्प्टी है, एम्प्टी फंक्शन का यूज करके मैं अगर चेक कर रहा हूँ whether that variable is empty, then it will going to give me the message like this। अगर वो एम्प्टी नहीं है, कुछ तो भी मैंने वहां पे टाइप किया है, तो वो कहाँ पे आ जाएगा, एल्स पार्ट में आएगा। एल्स पार्ट में आने के बाद नाउ दिस इज माय फिल्टर अंडरस्कोर var function। This filter underscore var will going to check the validation of your email ID। Now validation of email ID will be here। This is my email ID। अगर आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व करोगे, I am going to pass the first parameter whatever we are receiving from HTML code, वो मेरा first parameter रहेगा, और second parameter will be only this statement। It should be written like this only। ऐसा ही आपको लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, पूरा कैपिटल में रहेगा, अंडरस्कोर रहेगा, और इस वजह से रहेगा फिल्टर अंडरस्कोर वैलिडेट अंडरस्कोर ईमेल। अगर आप ये इस वजह से लिख दोगे तो वो क्या करेगा, ये फिल्टर अंडरस्कोर वैर फंक्शन जो भी है वो क्या करेगा, इस वेरिएबल के ऊपर इस कंडीशन को अप्लाई कर देगा। सो कौन सी कंडीशन, मुझे क्या करना है, फिल्टर करना है। किसे फिल्टर करना है, ईमेल आईडी को। कैसे करना है, उसे वैलिडेशन अप्लाई करना है, दैट्स इट। ये एक ही लाइन का कोड रहेगा आपका वैलिडेशन के लिए। अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो वो इफ ब्लॉक में आ जाएगा और वो आपको बताएगा दैट व्हाटएवर यू हैव एंटर्ड इट इज वैलिड ईमेल एड्रेस। अगर ये कंडीशन आपकी, अगर आप कुछ तो भी गलत दे देते हो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे इनवैलिड का पार्ट जो भी है वो डिस्प्ले करेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था इस वे से। तो यहाँ पे उसने वैलिड दिखा दिया, अगर यहाँ पे मैं देता हूँ तो वो उसे इनवैलिड दिखा देगा। Why? Because of this if statement। It is because of this if statement। बस इतना ही है ईमेल वैलिडेशन इन योर PHP। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वैलिड, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। मेरा सेकंड क्या है, सेकंड विल बी माय नेम वैलिडेशन। फुल नेम मैं दे रहा हूँ, फुल नेम के केस में क्या होगा, यहाँ पे फुल नेम चेक करना है आपको, तो वो चेक करेगा सबसे पहले फुल नेम का बटन क्लिक किया है या नहीं। अगर क्लिक किया है तो HTML से मैं से क्या करूंगा, अगेन PHP में ले लूंगा, वो एम्प्टी है या नहीं वो चेक कर लूंगा। अगर एम्प्टी होगा तो वो बोलेगा नेम इज रिक्वायर्ड, अगर एम्प्टी नहीं है तो मेरी ये कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे क्या दे रहा है वो, यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे आपका TOC पिक्चर में आता है, रेगुलर एक्सप्रेशन। REG stands for your what, regular expression। we have to match your what, regular expression। अगर ये मैच नहीं होता है तो वो मैसेज देगा only letter and white space allowed। अगर वो मैच हो गया तो वो बोलेगा that this is the valid name। अब वो कैसे चेक करेगा, वो चेक करेगा सबसे पहले वो चेक करेगा स्मॉल a to z है या नहीं, एंड कैपिटल A to Z है या नहीं, और उसके साथ में वो क्या चेक करेगा, यहाँ पे एक व्हाइट स्पेस आपको दिख रहा है, एम्प्टी स्पेस। It will going to check whether this empty space, whether capital A to Z and whether small a to z, स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप दोगे वही वो उसे चेक करेगा। अगर उतना पैरामीटर अवेलेबल है, उसके अलावा अगर आप कुछ देते हो तो वो ये एरर मैसेज देगा, अदरवाइज इट विल गोइंग टू गिव यू द मैसेज like this only। This is your name validation। And in case of your URL validation, again same, it will going to check whether that button is pressed or not। If that button is click, तो वो क्या करेगा, HTML से PHP में ले लेगा, तो उसे सबसे पहले चेक करेगा empty है या नहीं। अगर वो empty होगा तो वो मैसेज देगा URL is required। अगर वो empty नहीं है तो यहाँ पे वो मैसेज देगा आपको, क्या मैसेज रहेगा यहाँ पे, वो क्या करेगा, अभी यहाँ पे वैलिडेशन चेक करेगा। अभी वैलिडेशन कैसा रहेगा, आपको पता है URL वैलिडेशन किस वजह से होता है। URL वैलिडेशन में वो चेक करेगा अगेन रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन में वो सबसे पहले चेक करेगा आपका प्रोटोकॉल, आइदर इट विल बी HTTP और FTP, कोई भी रहेगा तो भी चलेगा। फिर वो चेक करेगा www डॉट, यहाँ तक वो चेक करेगा। उसके बाद वो चेक करेगा A to Z नंबर्स,
वहां से लेके यहाँ तक इतना पार्ट वो चेक करेगा। आप नंबर यूज कर रहे हो, आप सिंबल यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, वहां तक वो क्या करेगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट से लेके ये स्क्वायर ब्रैकेट तक इतना पार्ट वहां पे वो चेक करने वाला है। सॉरी, द फर्स्ट विल बी लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद स्टार रहेगा, स्टार विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ अगेन एनीथिंग फ्रॉम दिस टू दिस। एंड उसके बाद वो चेक करेगा .com.org या कुछ भी नहीं है, किस में चेक करेगा, इस URL वेरिएबल में चेक करेगा। यस, इट विल गोइंग टू चेक। अगर वो ये कंडीशन मैच नहीं होती है, देन इट विल गोइंग टू गिव यू द मैसेज दैट इट इज इनवैलिड URL। और अगर इसमें से कोई भी कंडीशन मैच हो जाएगी, देन इट विल गोइंग टू शो मी द मैसेज लाइक दैट URL इज माय वैलिड URL। दिस इज योर कोड ऑफ URL वैलिडेशन। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या होगा, आपका PHP का कोड एंड हो जाएगा, यहाँ पे आपका बॉडी टैग खत्म, यहाँ पे आपका HTML टैग फिनिश। So this is your PHP code for URL validation. This is your PHP code for name validation, and this is your PHP code for email validation. All in one आपको क्या करना है, इस वे से असाइन करना है, इस वे से आपके प्रोग्राम में आपको चेक करना है। You have to implement this code in your mini project. आप जो भी SL1 और SL3 का मिनी प्रोजेक्ट करोगे, आपको उस मिनी प्रोजेक्ट के अंदर ये